हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं। अब आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनिट 12, दैट इज ट्रूथ इज गॉड। सत्य ही भगवान है। So dear students of class 5, let's begin with activity 1. So can you see here a picture? Identify this picture. Have you seen this ever before? Yes or no? This is the picture of the Sabarmati Ashram, the ashram of Mahatma Gandhi ji, which is in Ahmedabad. Now complete the details based on the picture. You have to answer all those 1, 2, 3, 4 based on this picture. First question is, where is this memorial? I have already answered this question and the answer is Ahmedabad. Second question, which leader is associated with it? Already I have answered the question. आपको नाम बताना है कि ये आश्रम से कौन से लीडर जुड़े हुए हैं, and the answer is Mahatma Gandhi. You all know, famous person. Third one, place of birth. Okay, Mahatma Gandhi's place of birth. Do you know? Anybody else? कि आप बच्चों जानते हो where was Mahatma Gandhi born? Yes or no? If you know the answer, and the answer is Porbandar. Yes, Porbandar. And the fourth one, the other name given to him. Oh, interesting question. कौन सा दूसरा नाम गांधी जी को दिया गया था? बहुत ही पॉपुलर नेम. Any guess? You have 3 seconds. 1, 2, 3. The answer is Bapu, the father of nation. So let's go towards the next page, and we are on now activity 2. What is that? Name the leader from the following quotes. You have to identify who said these quotes and you have to tell the names. The first quote is experiment with truth. किसने कहा है ये? And the answer is Mahatma Gandhi. This quote was told by Mahatma Gandhi. The next one, Swaraj is my birthright. Swaraj is my birthright. किसने कहा है? किसी को आता है तो बोल सकता है, कमेंट सेक्शन में लिख सकता है. And the answer is Bal Gangadhar Tilak. The next, discovery of India, and this goes to Jawaharlal Nehru. The fourth one, give me blood and I will give you freedom. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. Who told this? And the answer is Subhash Chandra Bose. The last one, fifth one, I will not let British to rule my state. मैं किसी भी ब्रिटिश को मेरे राज्य पे राज करने नहीं दूंगा. ऐसा किसने कहा था? ऐसा बोला था रानी लक्ष्मीबाई ने. She told this. Let's go to the next page after activity 2. Hope आप सभी को समझ में आया होगा. Let's go forward. अगर आपको भी फ्री में मैथ्स एंड ग्रामर की वर्कशीट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. थैंक यू. Activity number 3, and here we are on the story, the real story of the chapter Truth is God. So let's start from the first paragraph. Bal Gangadhar Tilak was one of the leaders who fought for India's freedom during the British rule. बाल गंगाधर तिलक who fought मतलब लड़ा. इन्होंने इंडिया के फ्रीडम के लिए ब्रिटिश से लड़ाई करी. सो बाल गंगाधर तिलक एक बहुत ही फेमस लीडर रहे थे ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल जब था हमारे देश में, इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए इन्होंने काफी सारा योगदान दिया है. सो लेट्स टॉक अबाउट हिम. इनका एक इंसिडेंट है बचपन का. आइए चलिए सुनते हैं. इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग. लेट्स स्टार्ट. So, as a student, Bal was known his teachers as one of the brilliant, disciplined and well-behaved boy in the school. But one day, one of the teachers had a strange experience. बच्चों, as a student, Bal Gangadhar Tilak उनके टीचर में बहुत फेमस थे क्योंकि ये एक ब्रिलियंट डिसिप्लिन थे. डिसिप्लिन का मतलब है बिहेविंग इन अ कंट्रोल वे, मतलब अच्छी तरीके से बर्ताव करना. एंड वेल बिहेव्ड बॉय इन द स्कूल. अच्छा बिहेवियर था इनका स्कूल में, इसलिए टीचर के प्यारे थे ये. बट वन डे क्या हुआ, एक दिन वन ऑफ द टीचर्स हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस. एक टीचर को बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस हुआ क्लासरूम में.
During the recess, some students had eaten groundnuts in the class and thrown the shells on the floor near the teacher's table. एक दिन रिसेस के समय पे कुछ बच्चों ने ग्राउंडनट्स मतलब मूंगफली खाई और इसके छिलके टीचर के टेबल नीचे फेंक दिए. None of the boys who were coming in took serious note of it. किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया. The school bell rang and all the boys were back at their seats. किसी ने भी ये नहीं समझा कि हम गलत कर रहे हैं. चलो ठीक है, सबने फेंक दिया. स्कूल की बेल बज गई एंड ऑल वर देयर इनसाइड देयर क्लासरूम ऑन देयर सीट्स. एज द टीचर स्टेप्ड इन, टीचर अंदर एंटर हुए. He saw the husk scattered near his table and he flew into a rag. Who has done this mischief? He shouted. बच्चों यहां पर कुछ वर्ड मीनिंग से, जैसे कि हस्क, हस्क मतलब शेल ऑफ द ग्राउंडनट्स, इसके छिलके बोलते हैं. स्कैटर्ड मतलब यहां वहां बिखरे पड़े हुए थे. मिसचीफ मतलब जो गलत बर्ताव करते हैं ना, जो किसी को पसंद नहीं होता है वैसा बिहेवियर, उसे मिसचीफ करना कहते हैं. एंड रैग मतलब एंगर. सो इन एंगर, गुस्सा गए और चिल्ला के बोले, किसने किया ये, किसने ये बदतमीजी की है मेरे क्लास में. और सब लोग भड़क गए. देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या हो रहा है. देयर वॉज नो रिप्लाई फ्रॉम द स्टूडेंट्स. आई आस्क अगेन, शाउटेड द टीचर स्टिल लाउडर. टीचर अभी भी गुस्से में चिल्ला रहा था. आई आस्क अगेन, मैं फिर से पूछ रहा हूं, whose mischief is this? किसने की है ये शरारत. If the guilty boy does not stand up, those who know him should tell me who is he. Guilty का मतलब यहां पर लिखा हुआ है one who has done something wrong. जिसने गलती करी है वो गिल्टी कहलाएगा यहां पर. सो अगर जिसने ये शरारत की है वो लड़का अगर खड़ा नहीं होगा और मुझे उसका नाम कोई नहीं बताएगा तो देख लेना. The boys looked at one another. The boys looked at one another. Most of them really wondering who the culprit, the word culprit could be. Culprit का मतलब है the person at fault. सारे बच्चे यहां वहां देखने लगे क्योंकि किसी को पता ही नहीं था किसने किया है. Culprit मतलब ये गंदा काम जिसने किया है वो पर्सन. No one stood up, no one spoke a word either. कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला. The angry teacher then picked up the can from the table and said. Can का मतलब है, आप देख सकते हैं इनके हाथ में क्या है. टीचर ने इस हाथ में ले लिया स्टिक. गुस्सा गए थे, अब लाल पीले हो रहे थे और फिर से बोल पड़े, Since none of you is helping me to catch the guilty boy, I'm going to can every one of you. क्या बोला टीचर ने. टीचर बोल रहे अगर मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है इसको ढूंढने में, इस लड़के को, तो मैं सारे बच्चे को वन बाय वन इस सोटी से मारूंगा, इस कैन से मारूंगा. While the teacher was near the first row of the boys, Bal stood up. अब इतने में हुआ क्या, नजदीक की पहली बेंच पे बाल गंगाधर तिलक बैठे हुए थे. Bal stood up and boldly said, boldly मतलब बहादुरी से खड़े होकर बोले, Sir, many of us really do not know who the guilty boy is. सर हम में से किसी को नहीं पता है कि ये मिसचीफ शरारत किसने करी है. There are many others who have not even seen the husk on the floor. और सर इसमें से कितने सारे बच्चों ने तो इस जमीन पे क्या पड़ा है वो तक नहीं पता है, तो कैसे पता करेंगे हम किसने किया है. During the recess, all of us had gone out of the classroom. A boy from some other class might have done this mischief. Why then should the innocent boys be canned? The word innocent का मतलब है a faultless person. अब यहां पर बाल गंगाधर तिलक खड़े हो गए टीचर के सामने खड़े हो गए और बोलते हैं, सर हम में से क्लासरूम में कोई भी नहीं था, बिकॉज एट दैट टाइम हम लोग तो ग्राउंड पे खेल रहे थे, रिसेस जो चल रहा था. शायद क्या पता कोई दूसरा क्लासरूम का बच्चे यहां पर बैठ के खा गए हो, फेंक के चले गए हो, तो इसके लिए हम सबको पनिशमेंट क्यों बने. और हमको पता है कि किसी एक ने किया है तो इतने सारों को सजा क्यों, इन सबको सोटी क्यों मारोगे आप. सो ये बात हुई. अब गर्मी का माहौल हो चुका था क्लासरूम के अंदर. फिर क्या हुआ देखते हैं आगे बच्चों. यहां होता है द टीचर हु न्यू बाल्स गुड बिहेवियर ट्राई टू रिस्ट्रेन हिज ओन एंगर बट फेल्ड. टीचर क्या बोलता है, जानता है कि बाल गंगाधर एक गुड बिहेवियर लड़का है, तो अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, बट उनका गुस्सा ठंडा अभी भी नहीं हो पा रहा है. डोंट बी ओवर वाइस बाल. क्या बोला, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो बाल गंगाधर. आई एम श्योर सम ऑफ यू नो द कल्प्रिट. मुझे पता है तुम में से किसी एक को तो उसका नाम मालूम है. इफ द डोंट स्पीक आउट आई हैव गॉट टू पनिश द होल क्लास. देखो बाल, तुम अपने दोस्तों को बोल दो कि मुझे उसका नाम बता दे, नहीं तो मुझे आप सभी को पनिश तो करना ही पड़ेगा, वो भी पूरे क्लास को. इमीडिएटली मतलब तुरंत ही बाल सेड,
दो रिस्पेक्टफुली, बट सर आई फील दिस इज नाइदर फेयर नॉर जस्ट। रिस्पेक्ट से बोलता है, सर मुझे ये फील हो रहा है, ना तो ये आप अच्छा कर रहे हो ना तो अच्छा हो रहा है। What I told you about our innocence is the truth। जैसे मैंने आपको कहा, जो भी कहा वो सत्य था, जितनी भी बात करी मैंने। I don't want to see the innocent ones punished। और मैं किसी भी इनोसेंट बच्चे को मार खाते हुए नहीं देख सकता हूं। So please allow me to leave the class। इसलिए मुझे प्लीज मेहरबानी करके इस क्लास से बाहर जाने दीजिए। Before the teacher could say a word, Bal picked up his books and walked out of the classroom। टीचर कुछ बोले उससे पहले बाल गंगाधर तिलक क्लासरूम छोड़ के बुक्स लेके निकल गए। सीन तो खत्म हो गया। यहां पर आगे क्या होता है देखिए। आप देख पा रहे हैं इनकी फोटो। अब मैं आपको इनकी रियल फोटोग्राफ यहां पर दिखाने वाला हूं, देखिए। ये अच्छी लग रही है? लेट्स स्टार्ट। ऑल द बॉयज एडमायर बाल्स करेज एंड हिज लव फॉर जस्टिस एंड ट्रूथ। देखा बच्चों, ऑल द बॉयज एडमायर मतलब उनको फॉलो करते। क्यों? बाल गंगाधर का जो करेज, हिम्मत, एंड हिज लव फॉर जस्टिस, सच के लिए जो प्यार था उनके अंदर, ट्रूथ के लिए जो प्यार था उनके अंदर, सत्य के लिए, जस्टिस के लिए। Even the teacher could not help praising Bal। He looked at the class and said, Bal is no ordinary boy। If every student is as truthful and disciplined as he is, our country will have a great future। टीचर को भी लगा कि भाई इसके जैसा तो कोई है नहीं, और वो रोक नहीं पाए अपने आप को और बोले कि देखो बच्चों, बाल गंगाधर एक ऑर्डिनरी बॉय नहीं है, बराबर है। अगर बाल गंगाधर की तरह सारे बच्चे ट्रूथफुल होते, डिसिप्लिन होते, तो इंडिया का फ्यूचर सोचो कैसा होगा। बट ऐसा नहीं है। आगे बात करते हैं। इट इज दिस लव ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस दैट मेड बाल अ ग्रेट लीडर ऑफ आवर नेशन। ही केम टू बी कॉल्ड लोकमान्य तिलक। इसी लव ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस के कारण बाल गंगाधर तिलक धीरे धीरे ग्रेट लीडर बने अपनी सोसाइटी में, और उनको नाम मिला लोकमान्य तिलक। He won the love, admiration and respect of all the people of India, and so he was known as लोकमान्य तिलक। भाई इनकी सत्य और सबको सही, अगर कोई सत्य है, कुछ सही बात है, तो उसको जिताने की जो जिद थी उनके अंदर, इसी के कारण उन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीता और वो लोकमान्य तिलक बन गए। कैसी लगी आपको इनकी स्टोरी ट्रूथ के ऊपर? बच्चों आपको इतना तो समझ में आया होगा कि अगर आप सच हो तो आप दुनिया जीत सकते हो भाई। यहां पर वी हैव फ्यू क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाई डिड द टीचर गेट एंग्री विद द स्टूडेंट्स? टीचर बच्चों पे गुस्सा है क्यों? द आंसर इज, द टीचर गॉट एंग्री विद द स्टूडेंट्स बिकॉज समवन हैड स्कैटर्ड ग्राउंडनट शेल्स नियर हिज टेबल। टीचर के टेबल पे किसी ने मूंगफली के छिलके गिरा दिए थे। दैट्स व्हाई ही वाज एंग्री। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज बाल्स आर्ग्यूमेंट टू स्टॉप द टीचर फ्रॉम पनिशिंग द क्लास? बाल गंगाधर ने क्या आर्ग्यूमेंट किया टीचर को कि आप पनिशमेंट मत करो? द आंसर इज, बाल आर्ग्यूड दैट all the innocent boys should not be punished because of one boy's mischief। एक बच्चे की शरारत के कारण आप सारे बच्चों को पनिश नहीं कर सकते हैं। आगे के पेज पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एंड दैट इज, व्हाई डिड बाल लीव द क्लास? बाल गंगाधर ने क्लासरूम क्यों छोड़ दिया? एंड द आंसर इज, बाल लेफ्ट द क्लास बिकॉज ही कुड नॉट सी द इनोसेंट बॉयज कैंट। वो इनोसेंट बॉयज को मार खाते हुए नहीं देख सकते थे। दैट्स व्हाई ही लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 4, what qualities of Bal helped him to become a great leader? ग्रेट लीडर बनने के लिए बाल गंगाधर के पास ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी जिसके कारण वो ग्रेट लीडर बने? एंड द आंसर इज, Bal's love for truth and justice helped him to be a great leader। वो सत्य को प्यार करते, जस्टिस को प्यार करते, और उसी के कारण ये ग्रेट लीडर बने। आगे क्वेश्चन नंबर 5, हु इज योर फेवरेट नेशनल लीडर? बच्चों आपको फेवरेट, आपके फेवरेट नेशनल लीडर कौन है और आपको वो क्यों पसंद है? माई फेवरेट नेशनल लीडर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल बिकॉज ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर हु केप्ट इंडिया यूनाइटेड। ही इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने पूरे देश को इकट्ठा किया भाई। अगर वो ना होते तो आज देश एक ना होता, सब बटे हुए होते। दैट्स व्हाई आई लाइक हिम। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, आस्क योर क्लासमेट्स अबाउट देयर फेवरेट नेशनल लीडर्स। बच्चों आपके लिए एक मस्त काम आ गया है। अपने दोस्तों को फोन करो या क्लासरूम में जब बैठे तो मुझसे पूछो कि भाई तुम्हारा नेशनल लीडर कौन है, उनके नाम बताइए। सो
आपको उनको पूछ के यहां पर लिखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। सपोज यू वर इन बाल्स क्लास। अगर आप सोचो कि उस टाइम पे बाल गंगाधर तिलक के क्लास में थे, हो समझो हो, और यही इवेंट हो रही है, तो आप क्या करते? ऐसे टाइम पे आप क्या करते? आई वुड हैव पिक देम अप। तो मैं क्या करता? मैं उस छिलकों को उठा लेता और डस्टबिन में फेंक देता विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड। आई वुड ऑल्सो हैव स्टॉप टीचर फ्रॉम पनिशिंग द होल क्लास। मैं एक तो वो छिलके उठा के रख देता, अगर टीचर गलत काम करते तो उनको रोकता कि टीचर रिस्पेक्टफुली उनको बोलता कि ऐसा काम ना करिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज। यस, एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्टिविटी नंबर 4। प्लेस द sentences in the correct order of the story and rewrite in the passage form of passage. So बच्चों story को पढ़ो, you have all these points and try to find out which one is the first one. So first लिखा है the teacher refuses to accept ball explanation, ये तो पहले नहीं आया था। Some students have strewn groundnut shells near the teacher's table, ये भी पहले का इवेंट नहीं है। Bal tries to explain the truth of the situation. Nobody stands up to accept the responsibility. The teacher comes near to the students to can them. Bal is a disciplined and brilliant student. The teacher inquires about the culprit. Bal leaves the classroom after picking up his books. The teacher is very angry. So इसमें से सबसे पहले आएगा Bal is a disciplined and brilliant student. Second आएगा some students have strewn groundnut shells near the teacher's table. Third क्या आएगा बच्चों? The teacher is very angry, ये देखकर। So ये तीसरा क्रम नंबर पे आएगा। And the fourth one will be The teacher inquires about the culprit. गुस्सा होने के बाद उन्होंने पूछा कि ये culprit कौन है। तो फिफ्थ सेंटेंस आएगा Nobody stands up to accept the responsibility. उसके बाद कोई भी खड़ा नहीं हुआ, सब लोग चुप रहे। इसके बाद क्या हुआ? The teacher comes near the students to can them. वो नजदीक आए मारने के लिए सोटी से। But Bal tries to explain the truth of the situation. बाल गंगाधर बोलते हैं कि सर मैं आपको समझा रहा हूं, रुकिए, पहले सुनिए मेरी बात। बाद में होता है द टीचर रिफ्यूज। टीचर ने बोल दिया सॉरी तुम्हारी बात मैं नहीं सुनूंगा। आगे होता है बाल लीव्स द क्लासरूम आफ्टर पिकिंग अप हिज बुक्स। वो बुक लेके बाहर चले गए और यहां पर ये सेंटेंसेस अरेंज हो गए। अब क्या करेंगे आप? यू हैव टू राइट हियर। राइट फर्स्ट सेंटेंस, बाल इज अ डिसिप्लिन एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट। सम स्टूडेंट्स हैव स्ट्रेन ग्राउंडनट शेल्स नियर द टीचर्स टेबल। थर्ड, द टीचर इज वेरी एंग्री। वैसे आपको 4th, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th एकदम ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखना है प्लीज, ठीक है? आपके राइटिंग अच्छे होने चाहिए। लेट्स गो फर्दर टू द नेक्स्ट पेज एंड फाइंड आउट अबाउट द एक्टिविटी नंबर 5। क्या करेंगे इसमें? इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। फर्स्ट वर्ड इज अनस्क्रैम्बल। एक गेम की तरह है। यहां पर कुछ वर्ड्स आपके पास लिखे हुए हैं, उलट फुलट से लिखे हुए हैं, उसको करेक्ट करने। जैसे पहला वर्ड है, करेक्ट किया मैंने और लिखा है वो नोटिस। बच्चों सेकेंडली मुझे सारे वर्ड्स इस तरीके से कर देने हैं। अब सेकेंड वाला क्या लगता है? सेकेंड वाले से बनेगा स्टूडेंट्स, थर्ड वाले से बनेगा रिसेस, हाँ, फोर्थ वाले से क्या बनेगा? कंट्री, वाओ, एंड लास्ट वाले से बनेगा ऑर्डिनरी। बन चुका है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? मैच द वर्ड्स विद द डिस्क्रिप्शन। सो टू ब्रेक का मतलब यहां से क्या होता है? नोटिस, स्टूडेंट्स, रिसेस, कंट्री, ऑर्डिनरी। अ ब्रेक मतलब रिसेस ही होगा, तो ज्वाइन इट। अ सिंपल थिंग का मतलब ऑर्डिनरी ही होता है, ऑर्डिनरी का मतलब सिंपल ही रहता है। द थर्ड वन, अ प्लेस टू लीव, उसे हम कहते हैं कंट्री। उसके बाद पीपल हु स्टडी, जो लोग स्टडी करते हैं उसे बच्चे कहते हैं, दैट इज स्टूडेंट्स। एंड लास्ट वन इज बचा हुआ, टू गिव इंफॉर्मेशन, नोटिस देना। So here we completed activity 5. Hope आपको समझ में आ गया होगा। लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं towards the next exercise, exercise number 6। और यहां से हम लोग पार्ट 2 में देखने वाले हैं। So please वेट कीजिए, पार्ट 2 जल्द ही आपको मिल जाएगा। So यहां तक हम पहुंच चुके हैं। So please अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने क्लास 5 के स्टूडेंट्स को, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं पार्ट 2 में। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड डे।